निकी गोद अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी सत्संगत जीओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो सत्संगत जी अकाल पुरख वाहिगुरु दी मेहरां सदका इस भागा समा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ, ਮਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੋ ਜੋਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਤੇ ਆਪ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਮਨਮੁਖ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਕਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨਮੁਖ ਦੋ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ, ਕਿ ਮਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮਿਰਤ ਮੰਡਲ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਰਤ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਹੈ ਇਹ ਮਿਰਤ ਮੰਡਲ ਹੈ। ਮਿਰਤ ਮੰਡਲ ਜਗ ਸਾਜਿਆ ਜੂ ਬਾਲੂ ਕਰ ਬਾਰ। ਇਹ ਜਗਤ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਰੇਤੇ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ। ਰੇਤੇ ਦਾ ਘਰ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਢਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ।
मतलब कहते इन्ना है जिवें कागज है, कागज नूं पानी लग गया तो कागज खत्म हो जाता है, इदा ही ये मृत मंडल नाश हो जाता है। साडा शरीर है ये मृत मंडल है। बिन सुत बार ना लग गई ज्यों बालू कर बार। ते आपां सुन मंडल चों किवें आउंदे हां वो आपां विचारांगे कि मन कित्थों आउंदा है, कित्थे आके वसदा है। नाल आपां गुरबाणी दा द्वारा समझांगे इस नूं, क्योंकि संसार दे विच वख-वख भाषावां ने लेकिन निरंकार दे देश दी एक ही भाषा है, उत्थे ध्यान ही है। हुण आपां ध्यान दा खेल समझांगे कि किवें समझाया गया है सानू। ये आपां देखदे हां ये खाली खला है, ये बोर्ड रखिया समझण वास्ते आपां ने। ये खाली खला है, ऐदा ही जिहड़ा निरंकार है अनिरंकार सामने एक खाली खला है। हुण खाली खला दे विचों साडा जो मन आउंदा है मृत मंडल दे विच, सुन मंडल चों। ये सुन मंडल है। इस तो आपां आरंभ करदे हां ये सत्ता तो, जिसनूं एक कहते अंग्रेजी च रखा है। इत्थों सुन मंडल चों ज्यों ही मन जो कि परमेश्वर दी अंश है इत्थों मृत मंडल दे विच आया, एक तो दो हो गया। जदों दो हो गया कित्थे आके बस गया, अभी है। ये साढ़े दो नेत्र ने, एक तो ये दो हो के ए साढ़े नेत्रां च वस गया, ये अपने दो नेत्र ने। ते इत्थे वसन दे नाल आ भरम दा जिहड़ा पर्दा विचाले आ गया, निरंकार दे साडे नेत्रां दे विचाले आ भरम दा पर्दा आ गया। हुण जो इत्थे आके वसिया, इत्थों आया ये साडे नेत्रां च वस गया। हुण जिहड़े साडे नेत्र ने जिन्हां नूं गुरबाणी दे विच सूरज ते चंद्रमा दा नाम दिता है। दो नेत्र ने, एक खब्बा है ये चंद्रमा है ते ये सूरज है। आ नेत्र है साडा खब्बा नेत्र है जो सी है। आ खब्बा नेत्र है, ये सज्जा नेत्र है। दोनों दे विचाले ए दो नेत्रां दे विचाले आ एक साडा नक आ गया। दोहां नूं दो हो गए, हौमे विचाले आ गई। हुण आ नेत्र ए नेत्र च नहीं समा सकदा क्योंकि हौमे आ गई ते आ नेत्र तां खुला है, इधर कोई रुकावट नहीं, लेकिन इस पासे रुकावट है क्योंकि ऐस नेत्र ने इस दे विच आके समाउणा। ए सूरज है, इन्हें चंद्रमा दे विच समाउणा। इत्थों जोत आई आके नेत्रां च वसी। इनू महाराज समझाउंदे हन, ए नेत्रो मेरेओ हर तुम मैं जोत तरी, हर बिना वरना देखो कोई। पर हुण ए नेत्र की होया क्योंकि विचाले हौमे दी दीवार खड़ी हो गई ते ए नेत्र जब तक ए नेत्र च समाउंदा नहीं, एक नहीं हुंदा ते ओ अपने आप नू पहचान नहीं सकदा। हुण इत्थे वस के दो हो गए ते किवें चलदा है। दो नेत्रां द्वारा
संसार में दो होके दो द्वारा देख रहा है। हुण इह समझाया गया कि असीं किवें फिर एक होना। इस नेत्र ने इहदे विच समाउणा है, दो तो फिर एक होना। जो एफ है हुण इत्थे एक होना। महाराज दसदे गुरबाणी दे विच एक कदों हुंदे आपां भुल्लिया नूं जदों सानूं जनाउंदा है मालक, खुश हुंदा है, उन्हां नूं फिर आप किरपा करके एक दृष्ट करदा, आप जनाउंदा। किवें हुंदे? जिहड़ा साडा सूरज है ते चंद्रमा है, दो अलग अलग हो गए। इस दी गंढ पाउणी है सूरज ते चंद्रमा दी। सूरज नूं चंद्रमा वाले पासे लेके जाना हुंदा सी। इधरले नूं ये चले जाना है, ये खुला इधर होमे सी। ये गुर दे ज्ञान द्वारा ये समाउंदी है। उस तो बाद ये साडी जोत है, इस पासे साडा आकार है, इस पासे निरंकार है। ते आ जदों असीं एक जोत हो के उहदे च मिला देंदे ते साडी जोत परमेश्वर दी जोत च मिल जाती। ते परमेश्वर दी जोत च मिलने तो बाद की हुंदा कि साडा असीं एक रूप हो जाते परमेश्वर दे नाल। दो तो एक हो जाते हैं। जदों साडी जोत परमेश्वर दी जोत च मिल जाती, एक हो जाते, फिर जिहड़ा साडा मन प्रकाश रूप हो जाता है। जो मन साडा स्थूल होके हौमे करके स्थूल सी, दो जोतां होण करके जदों फिर एक जोत हो गई, हौमे दी दीवार पासे हट गई, ये जदों खत्म हो गया तो ये नेत्र समा गया, हौमे खत्म हो गई, एक रूप हो गए। फिर असीं अपने आप नूं देखते, अपने प्रकाश रूप नूं देखते। फिर असीं अपने आप नूं पहचानना, पहला अपने आप नूं देखना, अपने आप नूं देखिया, फिर असीं उस नूं देखना परमेश्वर नूं। अपने आप नूं पहचानण तो बाद, क्योंकि जब अपने आप की पहचान हो गई, अपने आप को पहचान लिया, फिर आप उस नूं देख सकते हैं। महाराज कहते हैं आप पछाण है हर मिले। कहते अपने आप को पहचान दे नाल हरि दा मिलाप हुंदा, क्योंकि असीं अपने आप को भुल चुके, इस करके परमेश्वर नूं भुल गए हैं। फिर असीं अपने आप को देख के फिर इथों असीं इथों जब देखते ध्यान लाउंदे, सानूं सारा खाली खुला प्रकाश रूप परमेश्वर नजर आउंदा है। जिथे आकार खत्म हो गया, एक रूप ही हो गया सारा ही। दो एक समा गए तो एक रूप ही हो गया। इस पासे फिर खुला है। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ? ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਜਨਾਉਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜਨਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਪ੍ਰਭ ਜੈਸੇ ਅਬਿਨਾਸੀ।
हुण एक रूप होके फिर सानू इस संसार की खेल का पता चलता है भी संसार दे विच जिहड़ा आवन जावन है, जिन्होंने मतलब कहते आवन जान एक खेल बनाया, आग्याकारी किन्नी माया। ये जो आवन जावन का एक खेल आ, किवें असीं आउंदे किवें जांदे, ये आवन जान का खेल फिर सानू समझ आउंदी है। जो रोज का खेल है, दिन ते रात का, दिवस रात दो दाई दाया खेल है सगल जगत। हुण शाम नूं सह सवाई साडे दो नेत्र जिथों पौण आउंदी, इत्थे ध्यान आउंदा, इथों पौण नूं छड्ड जांदे ते सौ जांदे। सवेरे इत्थे आके मन मिलदा पौण च ते नेत्रां च आके बैठ जांदा ते सामने चलना शुरू करदा, देखना शुरू कर दिंदा संसार नूं। इहनूं पता नहीं मैं किवें आउंदा, कित्थों मैं आउंदा, कित्थे जांदा, आ रस्ता भुल गया आउण जाण दा ते इदां चल रहा है। यह दिन ते रात का खेल है, जिथे आपां संसार नूं भुल जांदे, रात नूं संसार भुल जांदे, दिन च संसार च आउंदे ते संसार दा ज्ञान हो जाता। सौ गए मृत मंडल नूं भुल गए, सवेरे मृत मंडल च आ गए ते मृत मंडल दी सोची आ जाती। इदां दा खेल चलदा। लेकिन जे असीं परमेश्वर च समाउणा है, निराकार रूप च समाउणा है, फिर सानू एक खेल समझ के जिहड़ा जीव जिवें आपां दस्सिआ एक रूप हो गया, उस तो ज्ञान लैके इस नेत्र नूं इस नेत्र च समाउणा पैना, ए नेत्र नूं इस समाउणा। फिर जे साडा आ नेत्र ए नेत्र समा गया ते असीं किस नूं मिल गए, जो प्रकाश रूप परमेश्वर है, जिहड़ा आकार तो रहत है, निराकार रूप है। पर यह मिलन की अवस्था की है, जिवें आपां पहला वसे सी इस दे विच दो नेत्रां दे विच। हुण की होया, आ नेत्र और नेत्र च समा गया। इस पासे असीं रह गए, आ साडा हुण समा गया। हुण इस अवस्था च जदों साडा मन चले जांदा, फिर आप परमेश्वर साडी रसना तो बोलदा। इत्थे एक दृष्ट हो गया, इत्थे महाराज कहंदे साडा मन जिहड़ा है गुरमुख रूप हो गया, साध रूप हो गया। फिर उस मुख तो फिर आप परमेश्वर बोलता, मतलब प्रभु जी बस साध की रसना। आ परमेश्वर फिर इथों साडी रसना तो आप हुण जेड़ा जीव फिर जदों आ परमेश्वर च समा गए ते परमेश्वर आप बोलदा, जिन्हों गुरमुख कहंदे, जिन्हें सानू जुगती देनी हुंदी उस प्रभु नूं मिलण दी। जदों कोई जीव उसते कोल आउंदा, कोई दूजा जीव है जिसनूं हाले ज्ञान नहीं, जो है तो सही पर आ इधर भी ते इधर भी हाले दवले वसदा। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜੀਵਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚੋਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
एक कड़ी का रूप धारण कर लेंदा ते उस परमेश्वर नाल मिला दिंदा जिहड़ा एक है। जिथे फिर परमेश्वर ही रह गया, आप मालिक कृपा करदा, फिर वो दोनों के विचाले इधर परमेश्वर आ विचाले कड़ी का रूप था, इधर परमेश्वर उधर दूजे पासे वो जीव जिहड़ा आउंदा ते जिन्हां ने जान लिया वो फिर उन्होंने गुर दे के मुख तो ज्ञान दे के, जिवें आपां इस दे विच समझिया सी आप मालिक बोलदा मुख तो, क्योंकि इत्थे थले मुख है अपना, उत्ते पहुंच जाती है। हुण महाराज समझाउंदे कहते दो तरह के जीव विचरते संसार दे विच। एक जीव ने जिहड़े मनमुख ने, एक जीव ने जिहड़े गुरमुख ने। दोनों दे चलण दा सानू फर्क दस रहे भी किवें चलदे जीव। गुरमुख किवें चलदा ते मनमुख किवें चलदा विचरदा संसार दे विच। दो नेत्र सीधे देखदा ते अगे जाके दो दृष्टि एक हो जाती, लेकिन अपने घर तो अगे लंघ गया, अपने दर तो अगे लंघ गया। जिहड़े गुरमुख ने वो किवें देखदे ने, वो किवें चलदे ने। वो दोनों दृष्टियां नूं सम करके रखते हैं। आ मनमुखा की दृष्टि है ते आ गुरमुखा की दृष्टि है। हुण आ जीव जे इसदे कोल जावेगा ते उस इस नूं भी इस मार्ग ते चला देगा। इहदे कोल जावेगा, इस जीव दे कोल की बन जाणगे दोनों ही, दोनों की इको दृष्टि हो जाएगी। पर होनी किवें है? केड़ी जुगती लवावेगा? क्योंकि जीव जिहड़ा है जिहड़ा आप मालिक च समाया है ते दूजा जदों जावेगा आमो सामने ये ज्ञान दे के तो उसनूं भी एक दृष्ट कर देगा। ये 10वीं अवस्था है। जे अंग्रेजी दे जिवें आपां अगे विचार कीती सी गुरमुखी लिपि दी, जिथे 10.5 आउंदा, अंग्रेजी दे विच इस नूं 10 कहंदे गिनती दे विच, ते इस नूं ये 5वीं अवस्था, ये 5 है। पांच ते 5 10 हो जाते। जड़ा जीव 10वीं अवस्था चले गया, वो फिर दूजे जीव नूं ये ज्ञान दे के जो 10वें द्वार आपां कह दिंदे, 10वें द्वार का ज्ञान करवाउंदा, आप उच्च वसदा 10वें द्वार च, ते दूजे नूं ये ज्ञान दे के 10वें विच वसन का ज्ञान देंदा है। ते जदों ये जुगती लाउंदा है, आपां देखदे हां की अवस्था हो जाती साडी। आ नेत्र ए समा गया तो दोनों एक हो गए।
दो दृष्टियां एक हो गई, समा गया एक हो गई। हुण इसनूं आराधन का तरीका दस दे। किवें आराधना? एक दृष्टि हो के चलन का तरीका, इथों इधर नूं चढ़ाई चढ़ना, जमीन तो लैके आसमान तक वो मालिक जिहड़ा एक जोत रूप प्रकाश रूप है सानू नजर आना शुरू हो जाएगा। ये 26 अखरां दे विच इस खाली खला चों मन आया, दो जोतां होया ते कित्थे बस गया? दो जोतां होके दो नेत्रां दे विच ते विचाले ये हौमे दी दीवार आ गई दोनों नेत्रां दे विच। एक नहीं हो सकते। हुण गुर दे ज्ञान द्वारा ये हौमे दी दीवार जदों तोड़नी है, महाराज दसदे कि साडे ते परमेश्वर दे विचाले एक दीवार खड़ी है हौमे दी, कट्ठे बसदे आपां। फिर धन का एक संगवासा विच हौमे पीत करारी, गुर पूरे हौमे पीत तोरी जन नानक मिलै बनवारी। ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਰਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 26 ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 26 ਅੱਖਰ ਵਿਚਾਰੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ यही आपां नूं इत्थे दा ज्ञान दिता भी इथों आ मुख है, अपना पौण दा जिथों नक है हौम त्रै गुणा दा खेल है। ते इथों जाके क्योंकि मुख तो ज्ञान लेना कौन देऊगा? जिन्हों गुरमुख बना दिता मालिक ने। वो सानू मुख तो ज्ञान देंदा ते असीं कंनां नाल सुनना ते देखना है नेत्रां द्वारा। ते गुरमुख किवें चलाउंदे? दो नेत्रां नूं इस पॉइंट ते सम कर दे। दो नेत्रां नूं जिहड़े सामने देखदे इथों इस पॉइंट ते लेके आउंदे, क्योंकि इत्थे आके ही अखां च बैठिया सी, लेकिन विचाले धर्म दा पर्दा आ गया। पौण च मिलिया सी, अखां च आके बैठिया, नेत्रां च बैठिया, लेकिन पर्दा पै गया कि जाना भुल गया, विछोड़ा पै गया, लिप टुट गई। हुण फिर गुर द्वारा फिर आपां लिप जोड़ सकते हैं, फिर आपां उस मालिक दे विच मिल सकते हैं। आ बहुत सौखा तरीका है, क्योंकि ऊपर जोत दा खेड है चौथे पद दे विच। हुण ऐ सीधा चलता है, जब तक इस पॉइंट ते आउंदा नहीं, इस पॉइंट ते इदां आउणा, जब तक प्रवेश नहीं कर सकता सहज गुफा दे विच, सीधा चलदा। हमारे कहते भी इस रास्ते नूं तुसीं आ जाओ। दो नेत्रां दा, जिवें गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते नेत्र तुमके चंतर स्तुत्र तीर। ऐस ज्ञान नूं गुरबाणी दे विच बाण किया है, जिस शब्द नूं बाण कहते, इन्ना ही गुर है, ये ज्ञान है परमेश्वर नूं मिलदा, इस नूं बाण किया। लेकिन देंदा कौन है? जो मालिक नूं मिलिया है, जिन्हों आपां गुरमुख कहंदे, साधु कहंदे। उहदी रसना तो आप सतगुर आके बोलदा है, वो फिर आप परमेश्वर सानू ये बाण मारदा। बाबा कबीर जी सत्य कबीर सतगुर सूर में बाह्या बाण जो एक लागत ही पुए गिर परया, परया कलेजा शेख। इन बारे कहते
नेत्र तुंके चरण तरस तद्रव तीर तरंग। श्री भगवत पूरन कियो रघुवर कथा प्रसंग। हुण ऐस नूं आपां भुल्लण करके ते आ ज्ञान तो साडे कोल है नहीं, क्योंकि जानिया नहीं। जिवें आपां सवेरे विचारिया सी भी गुरमुख ते मनमुख दे विच की फर्क है। गुरमुख एक दृष्ट हो के बाद दे विच मन का ज्ञान लैके बाणी नूं समझदा पढ़दा है, समझदा है, सुझदा है, क्योंकि गुरमुख नूं ओह वस्तु प्राप्त हो जाती है। ते जिहड़े मनमुख हां वो अपनी मत द्वारा चलते हैं। हुण जिहड़े मनमुख ने माड़ा समझाउंदे आपां नूं भी जिहड़े मनमुख हां ਉਹ फिर ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੇਖਾ ਲਿਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੇਖਾ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਾਖਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੱਟੀ ਲੇਖੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਟੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ? ਪੰਡਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਓ ਅੰਗਾ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਆਇਆ, ਕਾਖਾ ਕੰਗਾ ਕਾਲ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਜੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ, एक जोत तो आया, दो जोतां दे विच बैठ गया, इथों आया दो हो गया, काल दे विच आके फस गया ते इत्थे बैठ के की करदा? पाप कमाउंदा, रीरी लल्ली पाप कमाउणे। आ रास्ता इधर भुल गया, पुठा हो गया, आए हो गया। इधर का गया रह गया, इधर भुल गया, शरीर ना जुड़ गया, माया ना जुड़ गया, जिन्होंने मारे कहते ऊंदू खप्पर पंचभू टोपी। कहते खप्पर मूता, पंचभू टोपी, पंचभूत का शरीर है, ऊंदू खप्पर हो गया, काया कुड़ासन। कहते जिस नाल जुड़ गया है एक कूड़ है, मन जा गोटी। हुण मन ने इहदे नाल जुड़ गया, कूड़ दे नाल। जुड़ना किहदे नाल सी? निरंकार दे नाल। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਇੱਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਮ ਕਰਕੇ ਨੇਤਰ ਸੰਤੋਖੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਧਰ ਸੱਚ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। मैं कहता सत संतोख संजम है नाल, नानक गुरमुख नाम संभाल। पर कहते कदों जदों गुरमुख सानू वो ज्ञान देणगे, उस गुरमुख दे ज्ञान नूं, उस गुर नूं तू संभाल लेगा ते मन संतोखिया जावेगा ते तैनूं सच नूं मिल सकदा। ये तेरे नाल ही बस दा दूर नहीं है। मैं कहते इस अवस्था च हो गए ते मन पाप कमाउण लग गया, औगण च पै गया। रीरी लल्ली पाप कमाने, पढ़ औगण गुण विसरिया। अज्ञान भुल गया घर नूं जानदा, औगण च पै गया। संसार नूं देख रहा, संसार नाल प्यार पा लिया, मोह पा लिया, क्योंकि ये सब बुराइयां ने। जिन्हें मतलब कहते लब लोभ बुराइयां, छोड़िया मनो विसार। कहते रब लोग बुराइयां ने इन्हां च मन पै गया। जब तक इहनूं छड्डदा नहीं,
जब तक आप परमेश्वर ਨੂੰ नहीं मिल सकते, क्योंकि ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ हराना है। कहते जे विसार दी ये गल दोही पातशाह की कदे ना आवे है। हुण इत्थे इस विच जान करके मैं कहते रीरी लल्ली पाप कमाने पर औगण गुण विसरिया, मन ऐसा लेखा तू की पढ़िया, लेखा देना तेरे सिर है। कहते तू किहड़े लेखे च पै गया, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਲੇਖਾ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਵਿਚਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੇਖਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੰਧ ਗਾਈਆਂ ਸਿਮਰੈ ਨਾਹੀ, कहते तू सिमरिया नहीं, किसी ने नहीं सिमरिया, उन्होंने कोल जाके तू ज्ञान नहीं लैंदा सिमरदा जेड़े उस मालिक नूं गाउंदे ने, जेड़ा ओहदा ज्ञान देंदे ने। नन्ना ना तुद नाम लिया, जो मालिक है, जो ऊंचे थां ते बसदा है, जेड़े उन्होंने गाउंदे उन्हां को तू जांदा नहीं, उन्हां तो ज्ञान नहीं लैंदा। ते जिस तन नाल जुड़ गया, जिस माया नाल जुड़ गया तू, ये तो हर रोज घट रही है, ये तो नासवान है। छछा चीजा ऐने समूड़े, क्यों छुट्टा जम पकड़िया। कहते तू इस तन नाल जुड़ गया, काया छिजदी है, ते तैनू जमा ने पकड़िया, तू छुट नहीं सकता, क्योंकि तू उन्हां कोल जाके ज्ञान नहीं लैंदा जेड़े उस परमेश्वर नूं गाउंदे ने, जेड़ा ओहदा ज्ञान देंदे ने। ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਇਧਰ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓੰਕਾਰ ਏਕੋ ਰਵ ਰਹਿਆ। ਓੰਕਾਰ ਇੱਕ ਧੁਨ ਏਕੋ, ਏਕੋ ਰਾਗ ਅਲਾਪੈ, ਏਕਾ ਦੇਸੀ ਏਕ ਦਿਖਾਵੈ, ਏਕੋ ਰਹਿਆ ਵਿਆਪੈ, ਏਕਾ ਸੁਰਤ ਏਕ ਹੀ ਸੇਵਾ, ਏਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਪੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਰਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇੱਕੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਲੈ ਸਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਏਕ ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਲਹਿ। ਅਕਥ ਕਥਾ ਸੁਣ ਸਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਲੈ ਸਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਥ ਦੀ ਕਥਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਨੇਤਰਾਂ ਚ ਗਿਆਨ ਪਾ ਕੇ ਮਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਥ ਕਥਾ ਲੈ ਸਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੋ ਨਾਨਕ ਆਤਮ ਰਾਮ ਕੋ ਲਹਿ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਚ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਕਾ ਸੁਰਤ ਏਕ ਹੀ ਸੇਵਾ, ਏਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਪੈ, ਭਲੋ ਭਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ, ਰਾਮ ਰਮਾ ਰਾਮਾ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਰਾਮ ਨੂੰ ਰਮਦਾ, ਰਾਮ ਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਆਪ ਰਾਮ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ। ਛੋੜ ਮਾਇਆ ਕੈ ਤੰਦ ਸੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੰਦ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਚ ਰਮਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕੀਰਤਨੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਭਲਾ ਹੋ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਆਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦਾ। ਆਈ ਧੁਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਓੰਕਾਰ ਓੰਕਾਰ एक तो ने एक को राग अलापै। पर कहते पंच विचित्रा करे संतोखा, सत सुरा लै चालै, बाजा मान तान तज ताना, पैर न बीगा कहलै। फेरी फेर न होवे कबहू, एक शब्द बंद पालै। सारा कुछ त्याग के बस एक आ ज्ञान है, गुर दा ज्ञान शब्द नूं पल्ले बन लईए, बाकी सारा कुछ त्याग के ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਗਾਉਂਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ। ਨਾਰ ਦੀ ਨਰ ਹਰ ਜਾਨ ਹਦੂਰੇ, ਗੂੰਗਰ ਖੜਕ ਤਿਆਗ ਵਸੂਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਰੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਗਿਆ,
सेवक अपना जो प्रभ पाया कोट मदै किनै कीर्तन गाया। कहते कोड़ा दे विचों कोई विरला जिहड़ा परमेश्वर नूं भा गया उहदा सेवक वो एक कीर्तन गाउंदा है। साध संगत की जावो टेक कहो नानक तेह कीर्तन एक। कहते साधु की संगत जाओगे तो उत्थे आ इक्को कीर्तन होगा, सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ कि किवें ਅਸੀਂ उस मालिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ है, किवें ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ है। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਮਾ ਤੋਂ, ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜਮਾ ਦੇ ਬਸ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਵੀ ਬੁੱਝਣ ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖਾ ਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੁੱਝਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਬੁੱਝਿਆ ਮਰ ਜਨਮ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਬਾ ਬੂਝੈ ਨਾਹੀ ਮੂੜੇ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਬੁੱਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਭਰਮ ਚ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਭਰਮ ਚ ਹੀ ਗਵਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਹੋਤਾ ਨੌ ਧਰਾਇਓ ਪਾਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਅਨਹੋਤਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਪੰਡਤ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਆਵਰੀ ਕਾ ਭਾਰ ਤੁਧ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੱਜਾ ਜੋਤ ਹਿਰ ਲਈ ਤੇਰੀ ਮੂੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਤ ਹੀ ਤੇਰੀ ਹਿਰ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਜੋਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਾ? ਜਦ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੋਂ। ਜੱਜਾ ਜੋਤ ਹਿਰ ਲਈ ਤੇਰੀ ਮੂੜੇ ਅੰਤ ਗਿਆ पछतावेगा एक शब्द तू चीने नहीं फिर जूनी आवेगा। कहते आ शब्द एक शब्द आ एक शब्द इत्थे तक जेड़ा शब्द आह ये अपनी तरह गुणा की भाषा है। आखर तो जेड़ा आकार इत्थे तक ना समाना है, अखर खिर जाएंगे। इत्थे तक शरीर त्रै गुणा का अखर सारा ज्ञान है, ये खिर जाना एक दिन ना समझना इथों इधर ये नहीं ना सुना। ये अखर है जिहड़ा इन्हां अखरां तो रहता आ ज्ञान है जिहड़ा एक शब्द का ज्ञान है। मतलब कहते तू आ ज्ञान नहीं लैंदा एक शब्द का, मतलब एक शब्द मेरे प्राण बसता है बहुत जन्म ना। हाँ कहते एक शब्द तू चीने नहीं फिर जूनी आवेगा। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਧ ਸਿਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਪੜ ਪੰਡਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੜ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ। ਅਮਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਖਾਲ ਵਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਖ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਖਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਝ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ। नहीं तो फिर की होना? पहला फाहा पिया पाते। कहते पहला तो फाहा तेरे गल च पैना, फिर जिन्होंने तुरैगुणी विचारा सुनाउंदा तू तेरे चेले चपटे उन्हां दे गल च फाहा पैना। पहला फाहा पादे पिया पिछों दे गल छाटड़िया। फिर कहते तू होर की करदा? इत्थे चल के कहते तू बस नहीं की, कहते तू तो संजम ही गवा लिया, तू तो लोकां दियां धीआं भैणां दे ब्याहां दे पैसे भी लैन लग गया। सस्सै संजम गयो मूड़े एक दान तुद कुथाए लिया। कहते एक जिहड़ा दान जिहड़ा सब तो घटिया दान तू ले रहा, सब तो पैड़ा वो है। कहते सा पुत्री जजमान की सा तेरी इत तन खादे तेरा जन्म। भी जेही जी दूजे दी पुत्री है वो जी तेरी पुत्री है, क्योंकि धीआं भैणां
सब दियां साझियां ने। कहते ये धन तू बहुत गलत ले लिया, ये धन खा के तेरा जन्म व्यर्थ चले जाना है। क्यों ले लिया? क्योंकि मत मारती माया ने, मम्मा मत हिर ले तेरी मूड़े, हौमे बड़ा रोग पिया। कहते हौमे का बड़ा रोग लग गया तेनू, क्योंकि होर माया मत हिर ली भी केड़ा कित्थों चंगा, कित्थों मैं लेना दान, कित्थों नहीं लेना, केड़ा लेना केड़ा नहीं लेना, क्योंकि हौमे दे विच आ गया, माया दे नशे दे विच इन्ना गुलतान हो गया। कहते कि तू भुल ही गया भी दान कित्थों लेना कित्थों नहीं लेना। मम्मा मत हिर ली तेरी मूड़े, हौमे बड़ा रोग पिया, अंतर आत्म ब्रह्म न चीनिया, माया का मोहताज पिया। कहते अंतर आत्मे इथों सामने सतगुर दा वासा काल तक इधर मैं आप देखते सामने मालिक वसदा, इथे आत्म राम वसदा। प्रवेश होना सी गुफा च, इथे आत्म राम नूं देखना सी कि जो है आत्म राम बिल्कुल जिवें शीशे दी नहीं है, ऐसी चमक है बिल्कुल शीशे दी नहीं। आत्म राम सारे सानू नजर आना शुरू हो जाता है, पर जदों असीं एक दृष्ट हुंदे हां। कहते ਇਹਦਾ ज्ञान नहीं लिया, क्योंकि ज्ञान तो आना सी जे असीं गुर दा ज्ञान लैके अगे जाते तां ही ब्रह्म नूं चीनना सी। पर कहते तू तो माया का मोहताज हो गया, अंतरात्मा ब्रह्म न चीनिया, माया का मोहताज है। माया लेके कहते की हालत होगी, कक्का काम क्रोध भरम्यो मुड़े, ममता लागे तुद हर विसर गया। काम क्रोध च फस गया, ममता च बह गया, क्योंकि क्यों लेंदा पाया ममता च फस के लेंदे, वो माया दे विच धीआं पुत्रां दे ममता दे विच फस के ये पैसे गलत लेंदा। कहते ऐदा तेरी हालत होगी, ममता लाग गए तुद हर विसरिया, पढ़ा गुण तू बहुत पुकारे। कहते पढ़दा भी तू, ज्ञान भी बड़िया गल्लां भी बड़िया करदा, पुकारदा लोकां नूं बहुत देंदा, पर आप तू बुझिया नहीं, बिन बुझे तू डुबूगा। आप बुझिया नहीं तो लोकां नूं तू बड़िया गल्लां सुणाउंदा, कहते तू तो खुद ही डुब गया। तो डुब के हालत की होंदी, कहते तत्ता तामस जलियो मूड़े, तमो गुण च इस पासे ध्यान आ गया, इस पासे तमो गुण है। ते इत्थे इस पासे जिहड़े राक्षस वसदे ने, इस नूं थान भ्रिष्ट थान किया, क्योंकि असीं आ रस्ता छड्ड के इस रस्ते नूं जाना हुंदा। इस पासे तमो गुण है, इत्थे तामस दे विच पै गया, तमो गुण दे विच पै गया। तत्ता तामस जलियो मूड़े, थत्था थान भ्रष्ट हुआ, कग्गा घर घर फिरे तू मूड़े, दद्दा दान न तुद लिया। कहते तू घर घर फिरदा, जिहड़ा असली दान लेना सी वो तो तू लिया नहीं। वो किहड़ा दान सी जिन्हों मारे कहते दाना सिरदान नाम दान, हरका नाम ते ऐसो सबना नूं करदा। वो जिहड़ा दान सी मालिक दे नाम दा, वो तो तू लिया नहीं, ते तू तां माया च गुलतान होके इस पासे आ गया, तामस दे विच चलदा फिरदा। थान तेरा उत्थे चलेगा जिथे भ्रिष्ट थान है। तू लोकां कोल जांदा, घरां दे विचों माया इकट्ठी करदा, पर जिहड़ा असली चीज तेनों जिस वास्ते मनुखा जन्म मिलिया सी, गोबिंद नूं मिलण वास्ते, क्योंकि गोबिंद गुर नूं किहा है, ज्ञान नूं किहा है, सच्चा गुर नूं किहा है, तो वो तू लिया नहीं, सच्चा गुर नहीं लिया। ते फिर महाराज कहते की हो गया, कहते पुप्पा पार न पवही मूड़े, कर परपंच तू पलट लिया। कहते तू पार नहीं हो सकता, क्योंकि तू तो परपंच करके अपने आप नूं पाल रहा है, ममता दे विच फसिया है, पर ये तेरे वस भी नहीं रहा हुण, क्योंकि तू दान गलत ले ले। सच्चा आप खुआयो बूढ़े,
कहते आप तेन परमेश्वर ने आप तो विछोड़ देता, खुआ देता है। यह सिर तेरा लेख पिया। कहते तेरे सिर हुण यह लेख ही पैगा कि तू हुण परमेश्वर नूं नहीं मिल सकता, तू पार नहीं हो सकता। भब्बा भव जल डूबो मूड़े, माया विच गुलतान पिया। कहते तू भव जल डुबूंगा क्योंकि तू माया च गुलतान आ, तो भव सागर च डुबना है, भव जल दे विच डुब जाना है। हाँ कहते हाले भी एक मौका है, हाले भी एक मौका है। जे तू गुर का ज्ञान ले लेगा तू फिर पार हो सकता है। गुर प्रसादी एक को जाना एक कड़ी में पार कर। कहते तू हाले भी पार हो सकता है, पर तू लेना नहीं हो दान। जे लेवेगा वो ज्ञान लेवेगा, तू फिर गुर द्वारा ज्ञान लेके एक नूं जान लेगा तो तू पार हो जाएगा। बाबा बारी आई है मूड़े, कहते आ तो बारी मिली सी तेनू, पैसा इकट्ठा करने वास्ते नहीं सी मिली, वासुदेव नूं मिलने वास्ते मिली सी। परमेश्वर नूं, वासुदेव परमेश्वर नूं कह, कहते तो वासुदेव नूं मिलने वास्ते मिली सी, वो तो तेनू विसरे गए थे आके। बाबा बारी आई है मूड़े, वासुदेव तुद विसरिया। फिर कहते दोबारा नहीं मिलना। फिर यह लैसी मूड़े 1,84,000 फिर पिया। ये वेला ना लैसी मूड़े, कहते वेला दोबारा नहीं मिलना तेनू। फिर तू जम के बस पिया। फिर कहते जमा दे बस पै जाना है। ये जी बाणी ये उन्होंने वास्ते गुरु साहब ने लिखी जेड़े विद्वान लोग, जिवें आपां विचार जे ज्ञान नहीं लेकिन अनहोंदा ही, जिन्हें कहते अनहोंदा नौतराया पादा, अनहोंदा आप गनाए दे, जिहड़ा अनहोंदे ही अपने आप नूं गनाउंदे ने। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ। ਗੱਗਾ ਗੋਬਿੰਦ ਚਿੱਤ ਕਰ ਮੂੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਗਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਚਿੱਤ 'ਚ ਵਸਾ। ਗੱਗਾ ਗੋਬਿੰਦ ਚਿੱਤ ਕਰ ਮੂੜੇ, ਗੱਲੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ? ਕੋਈ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਚਿੱਤ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਆ ਤੇ ਚਿੱਤ ਮੇਰਾ ਘਰ 'ਚ ਫਿਰਦਾ। ਉਸ ਚਿੱਤ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਗਾ ਗੋਬਿੰਦ ਚਿੱਤ ਕਰ ਮੂੜੇ, ਗੱਲੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਕੈ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਏ ਮੂੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ, ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਾ, ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਔਗਣ ਕੀਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਔਗਣ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਤੇਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਕਰੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈ। ਹਾਂ ਹੈ ਹਰ ਕਥਾ ਬੁਝ ਤੂੰ ਗੋੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਬੁਝ। ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੁਝ ਲਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਥਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਨਾਮ ਸੁਣਤ ਦਦੁਖ ਥਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਇਹ ਕਥਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕਥਾ, ਰਾਮ ਕਥਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਕਥ ਕਥਾ ਇਹ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਕਥਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਸਭ ਕੋਈ ਭਾਖਤ ਨੇ, ਸੁਰਗਵਾਸ ਰਘੁਬਰ ਕਰਾ ਸਗਰੀਪੁਰੀ ਸਮੇਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਕਥਾ ਹੈ, ਕਥ ਕਥਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਥਾ ਹੈ,
इस नूं बुझना पैना। कहते हर कथा हा है हर कथा बुझ तू मूड़े ता सदा सुख होई। जे इहनूं पढ़िया बुझिया नहीं, ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮਨਮੁਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾਲ। ਜੇ ਮਨਮੁਖ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਸੱਚਾ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਰਾਰਾ ਰਾਮ ਚਿਤ ਕਰ ਮੂੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰ ਲੈਣਾ, ਗੁਰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਰਾਮ, ਆਤਮ ਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਤ ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਵਸਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਰਾ ਰਾਮ ਚਿਤ ਕਰ ਮੂੜੇ ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਕਾ ਰਵ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਰਾਮ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਰਵੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀ ਨੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ, ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਮ ਦੀ ਨੀ ਬੁਝ ਲਿਆ। ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਰਾਮ ਹੈ, ਆਤਮ ਰਾਮ ਜੋ ਪਸਰਿਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਝ ਸੋਚੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਝ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਝੇ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੱਥ ਸਕਦਾ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਅਕਥ ਨਾ ਜਾਈ ਹਰ ਕਥਿਆ। ਸਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਨੂੰ ਕੱਥ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੈ? ਸੱਚਾ ਗੁਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਗੁਰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੇਖਾ ਹੈ, ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਗੁਰ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਵ ਜੋੜ ਲਈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਅਕਥ ਨਾ ਜਾਈ ਹਰ ਕਥਿਆ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜਿਆ। ਆ ਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਬੜਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾ ਗੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਸਤਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਨੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਮੁਕਤ ਜੀ ਵਾਲੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਉਜਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਮਾਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹਿਜ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸੱਸਾ ਸਭ ਜਗ ਸਹਿਜ ਉਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ, ਤੀਨ ਭਵਨ ਇੱਕ ਜੋਤੀ। ਤ੍ਰੈ ਭਵਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ। ਆ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਤ ਰੱਖਤੀ। ਸੱਸਾ ਸਭ ਜਗ ਸਹਿਜ ਉਪਾਇਆ, ਤੀਨ ਭਵਨ ਇੱਕ ਜੋਤੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਚੁਣ ਲੈ ਮਾਨਕ ਹੋਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਕ ਮੋਤੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਨਾਮ ਨੂੰ। ਮਾਨਕ ਮੋਤੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਹੀ ਸਨ। ਉਹ ਮਾਨਕ ਮੋਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ।
मैं कहा जो गुरमुखा ने बुझ लिया वो फिर बुझ के वो फिर गुरबाणी नूं पढ़ते ने समझ समझ के समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंत निरंतर साचा गुरमुख देखै साच संभाले। कहते गुरमुख देख सच नूं देखता है उन्होंने संभालना है। गुरमुख देखै साच संभालै बिन नाम है जग काचा। उस तो बिना नाम तो बिना असी कच्चे हाँ जिन्होंने देख लिया वो सच्चे हाँ। हुण जिहड़े जीव महाराज कहते त्रै गुणा दे विच इत्थे धर्मखंड है। त्रै गुणा दे विच धर्मखंड दे विच की है पाप भी ते पुण्य भी। धर्मखंड दे विच कौन वसदा? धर्मखंड दे विच चंगियाइयां भी ते बुराइयां भी ने। धर्मखंड दे विच राक्षस भी वसदे देवते वसदे हैं। धर्मखंड दे विच पौण पानी अगन दा खेल चलदा है। ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवते सारे किथे वसदे? धर्मखंड दे विच। मैं कहता धर्मखंड का हो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पौण पानी व संतर केते कान महेश केते बर में घाट घड़िया रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्धनाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रतन समुद्र केतिया खानी केतिया बाणी केते पाथ निरंतर केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना। ਇਹ ਧਰਮਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ जब तक ਇਹ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਸਾਡੇ ਦੋ ਨੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਇਹ ਉਦ ਤੱਕ ਧਰਮਖੰਡ ਤੱਕ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਰਮਖੰਡ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ। हमारे कहते धर्मखंड से जाके जीव उस क्योंकि धर्मखंड तो अगे ही इत्थे जाया जाता है। गुण उथों होने जिन्हें मैंने कहते धर्म संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बड़ भागी पावे। उत्थे सब कहते तद्दे धर्म धरे धर्मापुर गुणकारी मन तीरा। धर्मी होने तो बाद मालिक गुणा का खजाना देता है। आपे गुण आपे गुणकारी किस अवस्था च मरा जाता है अपन शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जस सुनता। कहते सच्चा शब्द आप परमेश्वर बकदा उसकी रसना तो ते जिहड़ा सुनदा उहदी सुरत भी सच्ची हो जाती है। पर देने वाला कौन है? आप। उत्थे सारा कुछ ही सत है। पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेकर हार नाम सत सत त्यावन हार आप सत सत सबधारी आपे गुणकारी। सारा कुछ आप है। उत्थे फिर मन जदों धर्मी बन के अगे चलता है फिर मालिक ये गुणकार देता है। तत्ते धर्म तले धर्मापुर गुणकारी मन तीरा। कहते गुणकारी हो गया मन तीर्थ दे विच है। तद्दा धूल पड़ा मुख मस्तक कंचन पे मनूरा। उन्हां जीवां दी जिहड़ी धूल है उन्हां दा ज्ञान है जिन्हें गुणकारी ने जिन्हां कोल गुण ने वो गुण साडे मुख ते सानूं दसदे भी इत्थे चलना है। जिवें आपां ध्यान लाउंदे भी इत्थों इधर नूं चलना है मस्तक ते लेके जाना सामने लेके जाना। आज तो ज्ञान साडे मुख ते पैंदा है उन्हां जीवां दा जिहड़ा ने बुझ लिया गुण देंदे ने। मतलब कहते साडा मन भी कंचन हो जाता है। धन धरनी तर आप अजोनी तोल बोल सच पूरा करता कीमत करता जाना कह जाना कुछ सूरा। मतलब कहते वो पूरा है लेकिन वो पजूना च नहीं आता। अजोनी है उसने किसी द्वारा गुरमुख द्वारा अपना ज्ञान आप देता है। ओदा दिता आप भी पूरा है ते ओदा दिता हुआ गुर भी पूरा है। हुण गुर लैके गुर कमा के ही उन्हें जान सकते नहीं आप जान नहीं सकते। तो मतलब कहते वो गुर असीं लैने नहीं चाहते।
करता कीमत करता जाना क्या जाना गुरसूरा, ज्ञान गवाया दूजा पाया। वो ज्ञान गवा लिया आपां, आ ज्ञान सी जिहड़ा आ गवा लिया ते असीं सीधे चल पे आए ते दूजे नाल जुड़ गए। असीं क्या देखते? आकार देखते, निराकार नूं छड्डदा क्योंकि निराकार एक दृष्ट होकर दिखना सी, लेकिन असीं सीधे चलदे ते असीं आकारां नूं देख रहे, दूजे नाल जुड़ गए। ते मतलब कहते ऐदा फिर ज्ञान गवा लिया दूजा पाया, गर्भ गलै बिख खाया। कहते बिखा नहीं शुरू करती, मन ध्यान कहाँ चलाउंदा? त्रै गुणां दे विच। मन की खुराक क्या बन गई? बिख। मन ने ध्यान लाउणा सी नाम दे विच, अमृत दे विच, लेकिन हुण मन ध्यान लाउंदा त्रै गुण माया दे विच, आकारां दे विच ते बिख खांदा। ऐदा कहते गर्भ च करना फिर इसने, गर्भ गलै बिख खाया। कहते जिहड़ा गुर दा ज्ञान है वो इत्थों दा